Good morning, children. Welcome to your GK class. Today, children, we will read about some great sports personality. Okay, children, we'll learn about some great sports personality. Now, children, you can see here there are photographs of various sports personalities. Now, the first is Sachin Tendulkar, who plays cricket. Okay, so he is a cricketer. Then the second is Sunil Gavaskar. He also plays cricket. Then we have Kapil Dev. He also is a cricket player. Then we have Milkha Singh. Okay, he is an athlete. Okay, so he is into athletics. He is also known as the flying Sikh. Okay, so he is Milkha Singh. Okay, then we have Dhanraj Pillai, and he is a hockey player. Okay, then we have Mahendra Singh Dhoni. He plays cricket. Then we have Mahesh Bhupati, who plays tennis. Then Anjali Bhagwat, who plays shooting. Then we have Sania Mirza, who plays tennis. Okay, again we will repeat it. Look here, children. This is Sachin Tendulkar, Sunil Gavaskar, and Kapil Dev. These all three people play cricket. Okay, then we have Milkha Singh, who is an athlete. Then Dhanraj Pillai, a hockey player. Then we have Mahendra Singh Dhoni, who also plays cricket. Then we have Mahesh Bhupati, who plays tennis. Then we have Anjali Bhagwat, who is into shooting. Then we have Sania Mirza, who plays tennis. Okay, children. So now, children, we will see some other personality. Okay, then we have Dhyanchand, who also plays hockey. Then we have Narain Karthikeyan. He is a Formula 1 race driver. Okay, so he drives Formula 1 cars very fast. Okay, then we have Vishwanathan Anand, who plays chess. Then Captain Rajyavardhan Rathore, who is into shooting. Then we have Bhaichung Bhutia, he plays football. Okay, then we have Vijay Amritraj, he is into tennis. Okay, so he plays tennis. Then we have P.T. Usha. She also is an athlete. Okay, so she is into athletics. Then we have Geet Sethi. He plays billiard. Okay, he is a billiard player. Then we have Leander Pace. He also plays tennis. Again, we have Dhyanchand, who plays hockey. Then we have Narain Karthikeyan, who is a Formula 1 race driver. Then we have Vishwanathan Anand, who plays chess. Then we have Captain Rajyavardhan Rathore, who is into shooting. Then we have Bhaichung Bhutia, who is a football player. He plays football. Then we have Vijay Amritraj, who is a tennis player. Then we have P.T. Usha. She is into athletics. Okay. Then we have Geet Sethi, who is a billiard player. Then we have Leander Pace, who is a tennis player. Okay, so these are some of the sportsmen. Okay, now have a look and read it. Okay, one by one you will read it. So I hope you can read this. Then we will go to the next slide.
Now read this, children. One by one, you will start naming them. The first is Sachin Tendulkar. Then, next, Sunil Gavaskar. Then the third sportsman, Kapil Dev. These all play cricket, okay? Then Milkha Singh, athlete. Then children, you will repeat Dhanraj Pillai, hockey. Mahendra Singh Dhoni, cricket. Mahesh Bhupati, tennis. Anjali Bhagwat, shooting. Sania Mirza, tennis. Okay? Now children. Dhyanchand, hockey. Then Narayan Karthikeyan, Formula 1 racer. Then we have Vishwanathan Anand, who plays chess. Then repeat everyone. Captain Jayawardhan Rathore. He is into shooting. Then Bhaichung Bhutia. He plays football. Next is Vijay Amritraj, who plays tennis. Then P.T. Usha. Yes, she is an athlete. Then Geet Sethi, a billiard player. Then Leander Paes, tennis. Okay, children? Yes. Now, children. Now we will learn about safety. Okay, safety first. Now see, children. You should always take care of yourself. आपको अपना ध्यान रखना चाहिए. अगर आप अपना ध्यान नहीं रखेंगे और आप केयरलेस होंगे तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है. Yes or no, children? Yes, you may face many difficulties, which is why you should always take care of yourself. Okay, children? Yes. Now see here. What should we do to keep us safe? है कि नहीं? हमें खुद को सेफ रखना चाहिए कि नहीं? Yes, we should always keep ourselves safe. Now see, children. First, we should always stay away from toxic things. Toxic things यानी आपको हमेशा टॉक्सिक चीज़ों से दूर रहना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल मॉस्किटो रेपेलेंट, परफ्यूम्स, ये जो स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं उनसे आपको दूर रहना चाहिए. जैसे फायर, मैच बॉक्स, लाइटर, ये सारी चीज़ों से आपको हमेशा दूर रहना चाहिए. देन you should never eat anything which you find. Yes, आपको कोई भी चीज़ फॉलो नहीं करनी है जो भी आपको मिल जाए. Yes or no? आपको सिर्फ वही चीज़ें खानी है. या कुछ भी आप नया चीज़ खा रहे हो तो आपको अपनी मम्मी से पूछना चाहिए. आपको अपनी मम्मी को बताना चाहिए कि मम्मी देखो क्या ना ये दिस, क्योंकि आपने वो पहली बार देखा. या कोई भी आपको कोई भी अनजान इंसान अगर आपको कोई कुछ भी दे तो आपको पहले अपनी मम्मी से पूछना. जब आपकी मम्मी कहे हाँ, तभी ये आपको खाना चाहिए. और कोई भी चीज़ जिसको आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो या फर्स्ट टाइम आपने देखा उसे कभी भी खाना नहीं चाहिए. पहले आपको अपनी मम्मा से पूछना चाहिए. ओके, सो यस, वी शुड नेवर ईट एनीथिंग विच वी डोंट नो, या फिर वो ईटेबल नहीं है. ओके, देन वी शुड नेवर टच हॉट थिंग्स. जैसे अगर आपकी मम्मा अगर आपके लिए कुछ बना रही है तो आपको तुरंत ही जाके उसे टच नहीं करना चाहिए. अदरवाइज यू कैन बर्न योर सेल्फ. ओके, देन वी शुड नेवर टच शार्प थिंग्स. जैसे कोई भी शार्प चीज़ जो एकदम पॉइंटेड होगी या काफ़ी शार्प होगी, जैसे जिसमें धार होगा. फॉर एग्जाम्पल नाइफ, नीडल, सिजर्स, ये सारी चीज़ें आपको यूज़ नहीं करनी चाहिए. आप जब भी आपको ये सारी चीज़ें यूज़ करनी हो तो आपको किसी भी बड़े का हेल्प लेना चाहिए. चाहे मम्मी हो, चाहे आपके बड़े भैया हो या दीदी हो. ओके,
खुद से आपको नाइफ, सिजर्स यूज़ नहीं करने चाहिए। देन चिल्ड्रन, दरवाजे के पास आपको कभी भी खड़ा नहीं रहना चाहिए, अदरवाइज यू में पिंच योरसेल्फ। अगर आप दरवाजे के पास खड़े हो हाथ रखे और किसी ने नहीं देखा, दरवाज़ा उन्होंने खोल दिया, तो आपका हाथ वहाँ फंस सकता है। ओके, तो दरवाजे के दोनों तरफ आपको कभी भी खड़े नहीं रहना चाहिए, ना ही वहाँ पर हाथ रखना चाहिए। सी, जैसे इन्होंने रखा हुआ है, अगर ऐसे आप रखेंगे तो आपका हाथ मुड़ जाएगा। यस और नो? यस, विच इज़ वाई यू शुड ऑलवेज टेक केयर कि दरवाजे के पास आपको खड़े नहीं होना। अगर आप खड़े भी हो और बाहर कोई आ गया है एंड ही डजंट नो दैट यू आर स्टैंडिंग नियर द डोर, और उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया, तो आपको दरवाज़ा भी लग सकता है। ओके, देन चिल्ड्रन, इलेक्ट्रिकल शॉक हैज़ार्ड्स। नाउ किसी भी इलेक्ट्रिक स्विच को आपको टच नहीं करना चाहिए। ओके चिल्ड्रन, यस, यू शुड बी वेरी केयरफुल। आपको बिल्कुल भी टच नहीं करना चाहिए। अगर आप उनको टच करते हो तो चांसेस है आपको शॉक लगने के। ओके, सो यू शुड नॉट टच इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स। ओके, नाउ चिल्ड्रन लुक हियर, while crossing the road, children, you should always look everywhere. Okay, see, जब लाइट ग्रीन होती है तो कार्स चलने लग जाती है, तो आपको तब बिल्कुल भी क्रॉस नहीं करना है। जब रेड लाइट हो जाती है देन कार स्टॉप्स। यस और नो? तब आपको रोड खाली मिल जाता है, तब आप लेफ्ट देखेंगे, राइट देखेंगे, एंड देन यू विल क्रॉस द रोड। ओके, यू शुड नेवर रन अराउंड इनटू द रोड वे। आपको कभी भी भागना नहीं चाहिए। ओके, देन you should always use the zebra crossing to cross the road. Okay, then if you see big cars, you should always stay away from the big cars, क्योंकि आप छोटे हो, big cars चांस है कि वो आपको ना देख पाए। ओके, then you should never play behind the car. ओके, किसी भी कार के पीछे आपको कभी भी खेलना नहीं चाहिए। ओके, Am I clear children? Yes. वापस से देखिए, आपको रोड क्रॉस करते हुए हमेशा लेफ्ट एंड राइट दोनों जगह देखना है, देन यू विल क्रॉस द रोड। ओके, यू शुड नेवर रन ऑन द रोड। ओके, अगर मम्मा आपको कहीं लेके जा रही है तो आपको रोड पर बिल्कुल भी नहीं भागना है, आपको अपनी मम्मा का या पापा का हाथ पकड़ कर ही चलना है। ओके, देन आप अगर खेल रहे हो तो किसी भी कार के पीछे आपको कभी भी खेलना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ड्राइवर अगर आगे से आया और वो कार में बैठ गया तो उसको पता नहीं चलेगा आप पीछे खेल रहे हो। ओके, सो यू शुड नेवर प्ले बिहाइंड दी कार। ओके, वेरी नाइस चिल्ड्रन। नाउ द नेक्स्ट रूल, you should always take care of yourself. Okay children, yes, अब अगर आप कार में बैठे एंड कार से उतरने के बाद, उतरने से पहले भी आपको देख लेना चाहिए अपने सराउंडिंग में, अपने आसपास, सो दैट कोई भी दूसरी कार वहाँ से ना जा रही हो, तब आपको अपना कार का डोर ओपन करके उतरना है। ओके, सो व्हाइल गेटिंग डाउन फ्रॉम द कार और अ मोटरसाइकिल यू शुड बी वेरी केयरफुल। ओके, सी वॉच आउट फॉर द कार और मोटरसाइकिल व्हेन गेटिंग ऑफ, देन क्रॉसिंग द रोड विदाउट द सिग्नल लाइट। यू शुड ऑलवेज, अगर वहाँ पर सिग्नल नहीं है और आप क्रॉस कर रहे हो तो आपको और अटेंशन ध्यान देना चाहिए कि कोई कार ना आ पाए। देन यू शुड ऑलवेज लुक लेफ्ट एंड राइट। ओके चिल्ड्रन, शुड ऑलवेज टेक केयर। देन ऑलवेज वेयर अ सीट बेल्ट। ओके, children under 13 are safest in the back seat. Always remember children, जब भी आप कार में बैठे you should always wear a seat belt. Now do not play between the cars stationed side by side. Suppose ये कार है
ये कार है, इसके बीच में आपको नहीं खेलना है। वेट, सपोज लुक हियर, सबसे पहले तो सपोज दिस इज योर कार, ओके। तो कार के पीछे आपको नहीं खेलना, ठीक है। कार के पीछे आपको बिल्कुल भी नहीं खेलना। ना सपोज दिस कार स्टेशन साइड बाय साइड, ओके। जैसे ये साइड बाय साइड है, ओके। तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं खेलना है, बीच में भी नहीं खेलना है, कहीं पर भी आपको कार के पास नहीं खेलना, ओके चिल्ड्रन। So you should be very careful, आपको अपना ध्यान रखना है, okay children? Yes. So you should always take care. You should never play between the cars. You should never play behind the cars. Now children, now look here. Use safety gear on the bicycle and inline skates. So whenever you are skating or using bicycle, you should always wear your safety gears, your helmet, your knee pad. Yes, so that आपको चोट बिल्कुल भी ना लगे, okay children? Now see here, I think this you all know. Now you'll just read it so that we understand it better and we will revise our safety habits, okay? Fasten your seat belts always. Sit quietly and do not bother the person who is driving in the car. जब आप छोटे हो तो आपको चुपचाप कार में बैठना चाहिए और जो कार चला रहा है उसे हमें परेशान नहीं करना चाहिए. And children should always sit in the back seat. हमेशा आपको पीछे ही बैठना चाहिए, क्योंकि आप छोटे बच्चे और छोटे बच्चे हमेशा बैक सीट पे सेफ रहते हैं. Always get out on the curb side of the car. यानी आपको रोड की तरफ जो दरवाज़ा खुले वहाँ नहीं, दूसरी तरफ आपको उतरना चाहिए. Then unless other plans made with your family, go right home from school. यानी अगर आपकी फैमिली बोले कि हम यहाँ से कहीं और जाएंगे तभी ही आपको बाहर जाना चाहिए है, वरना स्कूल से आप डायरेक्ट घर जाएंगे, ओके. यू शुड ऑलवेज वॉक ऑन द रोड, यू शुड नेवर रन, ओके. यू शुड ओबे ऑल द रूल्स, पुलिस, स्कूल सेफ्टी पेट्रोल्स, क्रॉसिंग गार्ड्स एक्सेट्रा, ओके. लुक इन ऑल डायरेक्शन बिफोर क्रॉसिंग द स्ट्रीट. यानी कोई भी स्ट्रीट क्रॉस करने से पहले सारे डायरेक्शन में आपको देख लेना चाहिए कि कहीं से कोई कार या कोई व्हीकल आ तो नहीं रही. देन ओबे ट्रैफिक सिग्नल्स, आपको सारे ट्रैफिक सिग्नल्स ओबे करने चाहिए, ओके. वॉक फेसिंग द ट्रैफिक इफ देयर आर नो साइड वॉल. देन वॉच आउट फॉर टर्निंग व्हीकल्स. जैसे अगर यहाँ पे ये टर्न हो रहा है तो आपको ध्यान देना यहाँ से चलना नहीं है, वरना आपको गाड़ी से टक्कर लग सकती है, ओके. देन अवॉइड क्रॉसिंग बिटवीन पार्क्ड कार. अगर दो कार हैं तो बीच से आपको क्रॉस नहीं करना चाहिए, अभी टीचर ने यही बताया. देन बीवेयर ऑफ द स्ट्रेंजर्स एंड अवॉइड देम. अगर कोई स्ट्रेंजर यानी ऐसा इंसान जो आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है और आप उन्हें नहीं जानते तो उनको आपको अवॉइड करना चाहिए, उनसे आपको बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहिए, ओके. आपको शोर मचाना चाहिए और आपको वहाँ से भाग जाना चाहिए. आपको बिल्कुल भी उनसे बात नहीं करनी चाहिए. हमें किसी भी स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी चाहिए, जिसको हम नहीं जानते उनसे हमें बिल्कुल भी बात नहीं करनी चाहिए, ओके. नाउ while cycling you should always wear a helmet. Yes. Then जब भी आप रोड क्रॉस करें तो साइकिल पे बैठ के नहीं, साइकिल से उतर कर यू विल क्रॉस द रोड, ओके. यू शुड ऑलवेज स्टॉप, लुक बिफोर ऑल द वेज while crossing the road, okay. And you should follow all the traffic rules. Now see, अब बच्चा आपको क्या ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिसिटी का भी, है ना, बिकॉज हमारा सारा काम इलेक्ट्रिसिटी से होता है कि नहीं. यस. सी, अगर आप बारिश से भीग कर आए या आप गीले हो चुके हैं, आपके ऊपर पानी गिर गया है, ओके. जब भी आप वेट होंगे या पानी के ऊपर आप खड़े हो तो आप कोई भी इलेक्ट्रिक की चीज़ें टच नहीं करोगे. याद रखो, व्हेन यू आर वेट, अगर आप भीग गए हो
या फिर आप पानी के पास खड़े हो या पानी के ऊपर खड़े हो, तो आप कोई भी इलेक्ट्रिक वाली चीज़ें आप टच नहीं करोगे। ओके, अगर आपकी कॉर्ड्स या आपका वायर, लुक हियर, अगर जैसे आपका वायर होता है या प्लग होता है, सपोज दिस इज योर प्लग एंड इट हैज़ 2 रॉड्स, अगर उसका रॉड टूटा हुआ है तो भी आप उसको यूज़ नहीं करोगे। ओके, और उसका वायर जैसे टूटा हुआ है तो भी आप उसे यूज़ नहीं करोगे। ओके चिल्ड्रन, नाउ सी यू शुड नेवर टच और क्लाइम दी पावर यूटिलिटी को, यानी जहाँ पर भी आपका पावर वाला जो होगा, केबिन होगा या पोल्स होंगे, जहाँ से ऐसे ऐसे पोल्स होंगे, उनको आपको टच नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है। ठीक है, फिर आपको मेटल ऑब्जेक्ट्स या शार्प ऑब्जेक्ट्स आपको प्लग्स में नहीं डालने चाहिए या किसी भी सॉकेट में आपको उपयोग नहीं करना चाहिए। ओके, देन अगर आपको कॉर्ड्स दिख रहे हैं तो उस कॉर्ड पे खड़ा नहीं होना चाहिए, और आपको कभी भी प्लग खींचना चाहिए, जैसे ये जो प्लग है इसको खींचना चाहिए, वायर, आपको ये सब टच करना ही नहीं चाहिए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है कि हमें क्या करना चाहिए, आपको अपनी मम्मी या पापा या किसी भी एल्डर की हेल्प लेनी चाहिए। आपको कोई भी इलेक्ट्रिक चीज़ें बिना मम्मी के परमिशन के या बिना घर में जो बड़े हैं उनके बिना परमिशन के आपको टच नहीं करना चाहिए। ओके, सो यू विल बी सेफ। नाउ चिल्ड्रन, these are some rules which you have to follow. See, I will check first with my parents, guardians or other trusted adult before going anywhere, helping anyone, accepting anything or getting into car. यानी अगर आपको कोई हेल्प कर रहा है या आपको कोई बोल रहा है आपके साथ चलो या आपसे कोई हेल्प मांग रहा है, तो आप सबसे पहले परमिशन लोगे अपने मम्मी पापा की कि क्या मैं उनकी हेल्प कर सकता हूँ, क्या मैं उनके साथ जा सकता हूँ, तभी आपको उनके साथ जाना है। ओके, अगर आपकी मम्मी नहीं कहे तो आपको नहीं जाना। ओके, या किसी भी कार में आपको नहीं बैठना। ओके, आई विल टेक अ फ्रेंड विथ मी व्हेन गोइंग प्लेसेस और प्लेइंग आउटसाइड। जब भी आप खेलने जाओ तो आपको अकेले खेलने नहीं जाना, आप अपने फ्रेंड के साथ जाओगे। ओके, सी आई विल टेल नो इफ पीपल ट्राई टू टच मी और हर्ट मी। अगर आपको कोई भी मारने आ रहा है या कोई भी आपको परेशान करना है, आप उसे नो कहेंगे और तुरंत ही जाके अपनी मम्मी को बताएंगे। ओके, अगर आपको सी आई विल टेल माई ट्रस्टेड एडल्ट and if anything makes me feel sad, scared या confused. For an example, अगर आपको कभी भी कोई चीज़ आपको बुरी लग जाए या आप डर जाओ या आपको कोई चीज़ समझ ना आए, तो आप क्या करोगे? तुरंत ही अपने मम्मी को और पापा को बताओगे, दोनों को बताओगे। ओके, अगर आप डर गए हो किसी चीज़ से या फिर आपको कोई चीज़ बुरी लग रही है या आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो आप क्या करोगे बच्चों? You will always tell your mummy and papa. Okay? Always remember, कोई भी अगर आपसे हेल्प मांग रहा है तो आप सबसे पहले अपने मम्मी पापा को पूछेंगे क्योंकि शुड आई हेल्प देम। अगर आपके मम्मी पापा हाँ कहते हैं तो यू विल हेल्प देम। ओके, जब भी आप बाहर खेलने जाओगे यू विल ऑलवेज गो विथ योर फ्रेंड। आप अकेले बाहर खेलने नहीं जाओगे। ओके, अगर आपको कोई भी चीज़ बुरी लगती है या आप डर गए हो किसी चीज़ से या फिर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो आप क्या करोगे? अपनी मम्मी पापा से पूछोगे और उसे बताओगे वो सारी चीज़ें। ओके, मम्मी पापा को तुरंत ही आपको सारी चीज़ें बता देंगे। ओके, यस, वेरी नाइस चिल्ड्रन, यू शुड ऑलवेज टेल एवरीथिंग टू योर पेरेंट्स। नाउ वी विल रीड दिस. This is fire safety. Okay, now look here. Don't play with matches or lighter. Read it again. Don't play with matches or lighter. What does this means? कि आपको मैच बॉक्स यानी मैचेस और लाइटर से नहीं खेलना चाहिए। ओके, देन डोंट हाइड फ्रॉम फायर। अगर देन स्टे लो एंड क्रॉल टू सेफ्टी। अगर कहीं फायर है तो आपको ज़मीन के
पास रहना चाहिए, आपको बैठे रहना चाहिए। ओके, स्टॉप, ड्रॉप एंड रोल, यानी अगर कहीं फायर है तो आपको तुरंत रुक के, लेट के रोल करना चाहिए। ओके, whenever there is fire near you. ओके, लेकिन जब भी अगर ऐसा फायर दिखे तुरंत ही आपको अपने मम्मी पापा के पास भाग जाना चाहिए। ओके, यू शुड ऑलवेज स्टे विथ योर पेरेंट्स एंड इफ यू सी अ फायर, तुरंत ही आपको मम्मी पापा को इन्फॉर्म करना चाहिए। नाउ लीव टॉयज बिहाइंड एंड गेट आउट ऑफ द हाउस क्विकली बट सेफली। आपको अपने टॉयज के लिए वापस नहीं आना चाहिए। ओके, अगर आपको कहीं पर भी कुछ भी ऐसा दिखे तुरंत ही आपको अपने मम्मी पापा को इन्फॉर्म करना चाहिए। ओके, now look here children, should always remember this, never stick finger, toys or other objects into electric socket, you might get hurt by electricity। हमेशा आपको बच्चों ये याद रखना है कि आप कोई भी फिंगर, टॉयज या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट आप इलेक्ट्रिक सॉकेट में नहीं डालना। क्यों? क्योंकि आपको शॉक लग सकता है। देन याद रखना बेटा, नेवर प्लेस हेयर ड्रायर, रेडियो या कोई भी ऐसी इलेक्ट्रिक के पास इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती, उसके पास पानी वाली चीज़ें आपको नहीं रखनी चाहिए। ओके, नेवर पुल अ प्लग फ्रॉम एन आउटलेट बाय इट्स कॉर्ड, आपको कभी भी कोई भी प्लग या वायर नहीं निकालना चाहिए। आपको किसकी हेल्प लेनी चाहिए? मम्मा पापा की। ओके, ऐसी चीज़ें करने में आपको ये चीज़ें करनी ही नहीं। ओके, जब आप वीडियो गेम खेलें तो वहाँ पर आपको जूसेस वीडियो गेम के पास या कंसोल के पास नहीं रखना चाहिए। ओके, नेवर क्लाइंब ट्रीज नियर दी पावर लाइन, पावर लाइन के पास जितनी भी होंगे वायर्स के पास, आपको वहाँ पर वायर से दूर रहना है। ओके, और आपको अगर कोई चीज़ ना समझ में आए तो आपको तुरंत ही अपने मम्मी पापा को पूछना चाहिए। ओके, नाउ चिल्ड्रन, हाउ विल यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम कोरोना? तो आप हमेशा 1 मीटर डिस्टेंस रखोगे। यू विल ऑलवेज कीप 1 हैंड डिस्टेंस बिटवीन योर सेल्फ। ओके, देन यू किसी से भी हैंड शेक करने से पहले आप अपना हैंड शेक करने के बाद आप हैंड वॉश करेंगे। ओके, देन डोर नॉब्स या ऐसी किसी भी चीज़ों को टच करने के बाद आप क्या करेंगे? अपने आप को सैनिटाइज करेंगे। ओके, आप हमेशा फेस मास्क पहनेंगे। You will always maintain distance. Okay children? Yes, हम हमेशा फेस मास्क पहनेंगे। Yes, see, you can see they are wearing face masks. Yes, and you should always maintain distance. आपको सबके साथ बैठ के चिपक के नहीं रहना, आपको 1 मीटर डिस्टेंस मेंटेन करना है। ओके चिल्ड्रन? देन हमें और क्या करना है? वी शुड ऑलवेज वॉश आवर हैंड्स। ओके, वी शुड ऑलवेज वॉश आवर हैंड्स। वी शुड ऑलवेज वेयर फेस मास्क। अगर हम बाहर जा रहे हैं तो वी शुड ऑलवेज वेयर फेस मास्क। ओके, देन यू शुड ऑलवेज कवर योर माउथ वाइल कफिंग एंड स्नीजिंग, यानी जब भी आप खांसें या आपको खांसी आए या कफ आए तुरंत ही आपको अपना माउथ कवर कर लेना चाहिए। देन यू शुड ऑलवेज ग्रीट पीपल विथ नमस्ते, यानी आपको लोगों से नमस्ते करना चाहिए, हैंडशेक नहीं करना चाहिए। देन यू शुड ऑलवेज मेंटेन 1 मीटर डिस्टेंस स्पेशली टू दोज पीपल हु आर सिक, जो बीमार है उनसे 1 मीटर दूर रहना चाहिए आपको। देन अवॉइड कॉन्स्टेंटली टचिंग योर आईज, नोज एंड माउथ, यानी बार बार आपको अपने आईज, नोज, माउथ टच नहीं करने चाहिए। एंड यू शुड ऑलवेज मेंटेन हाइजीन एंड यू शुड ऑलवेज कीप योर सराउंडिंग क्लीन, यानी आपको अपना सराउंडिंग क्लीन रखना चाहिए और आपको हाइजीन भी मेंटेन करना है। यू शुड ऑलवेज टेक बाथ, यू शुड वॉश योर हैंड्स। अवॉइड पब्लिक गैदरिंग असेंबलीज एंड कॉन्फ्रेंस, यानी जहाँ बहुत सारे लोग जमा होंगे वहाँ आपको नहीं रहना है, आपको घर चले आना है। ओके, सो रिमेंबर चिल्ड्रन, you should always wash your hands. Okay, you should always wash your hands. Then you should wear face mask. हमेशा आपको जब भी आप घर से बाहर निकले आपको फेस मास्क पहनना है।
देन whenever you sneeze या cough या जब भी आपको खांसी है, you should cover your mouth. Then you should greet people with namaste rather than shaking hands. Then you should maintain 1 meter distance. आपको eyes, nose, mouth बार बार टच नहीं करना. You should always maintain personal hygiene, okay? And then you should keep your surrounding clean. आपको भीड़ वाली जगह, फॉर एग्जाम्पल जो क्राउडेड प्लेस है, उनसे आपको दूर रहना चाहिए. ओके चिल्ड्रन, दिस इज ऑल फॉर टुडे. हैव अ नाइस डे चिल्ड्रन.